प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ +2 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? P/E/F ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟੂ ਬੋਥ E ਐਂਡ F। मतलब ਜਿਹੜੇ E ਤੇ F ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ favorable to event F। ठीक है, की मतलब की है? एग्जाम्पल दे नाल इहदी डेफिनेशन समझते हैं। लैट आपां एक डाई रोल की। सो आपां नूं पता है जो एक डाइस आपां रोल करांगे तो 1 2 3 4 5 6 इहदे उपर आएगा। ठीक है, आपां ई इवेंट मान लिया नंबर ग्रेटर दैन 3, F इवेंट मान लिया आपां बच्चे इवन नंबर आउण दा। ठीक है, सो ई इवेंट दे विच अपने कोले किहड़े मैंबर आ जाणगे? 3 तो ग्रेटर किहड़े अपने कोले? 4 5 ते 6। F दे विच अपने कोले किहड़े आ? इवन नंबर किहड़े आ? 2 4 ते 6। सो जदों आपां P/E/F कैलकुलेट करनी है, ठीक है, दैट मीन E ते F ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ 6, 4 ਤੇ 6। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ E ਤੇ F ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2 ਅਪੋਨ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ F ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। F ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 1 2 3। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2/3। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E ਤੇ F ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜੇ F ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ P/F/E ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ P/F/E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ F ਤੇ E ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਤੇ F ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 4 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਵਰ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ E ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ E ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, E ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 3। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ P/F/E ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 2/3। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ E ਗਿਵਨ ਦੈਟ F ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ P/E/F ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ E ਤੇ F ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜੇ F ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ NS ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ S। ਸੋ ਇਹ ਵੀ NS ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਦੀ ਅਪੋਨ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ F ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ P/F/E ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ F given that E is already happened। so ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? P/E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F by P/E। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। let E and F are two events associated with the same sample space। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। of a random experiment, then the conditional probability of event E given that F has occurred is given by P/E/F is equals to P/E intersection F upon P/F provided that ਜਿਹੜੀ ਆ P/F ਆ ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ F ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ A ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/2 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ B ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3/8 ਹੈ ਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਉਹ 1/5 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ? PA/B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ।
सो हुणे ही आपां डेफिनेशन करके आए हैं पी ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी इज हैपन इहदी की आएगी पी उपर की आ जाएगा अपने कोले ए ते बी दी इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी ओवर दे विच की आ जाएगा अपने कोले इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी सो आपां नूं स्टेटमेंट दे विच दोवें चीज़ां गिवन है ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने कोले बच्चे 1/5 ठीक है बी की कितनी है 3/8 सो इनू आप सिंपलीफाई कर लिए 1/5 ए ऊपर जाके 8/3 हो जाएगा सो 8/15 सो ए अपना आंसर बी आंसर आ गया इहदा सो ये क्वेश्चन आप इस तरह करना सीगा बच्चे बड़े ईजी क्वेश्चन है इहदे प्रोबेबिलिटी दे एक तुहाडे कोले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी डेफिनेशन ते एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स दी जिहड़ियां तुहाडीआं फस्ट 2 एक्सरसाइज दे विच लगदियां ते क्वेश्चन आ जिहड़े उहदे अराउंड ही सारे तुहाडे सॉल्व हो जांदे आ सो ये ध्यान नाल देखने तुसीं नैक्सट क्वेश्चन अपने कोले हाँ पिछले क्वेश्चन दे विच आपां बच्चों पी ए अपॉन बी कैलकुलेट करके आए सीगे हुण पी बी अपॉन ए ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अक्कड़ ठीक है सो फिर वही गल डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है उपर की आ जाएगा ए ते बी दी इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जिहड़ा नीचे हुंदा बी तो जिहड़ी चीज़ गिवन हुंदी है सो उनकी प्रोबेबिलिटी आपां नीचे लेने ठीक है सो पी ए इंटरसैक्शन बी अपने को कितनी है 1/5 पी ए कितनी है 1/2 सो ये 1/5 इंटू 2/1 आ जाएगा सो इनका आंसर कितना आ गया बच्चे हो 2/5 सो ए आंसर आ गया तुहाडा ठीक है सो ये सेम उनके नाल दा क्वेश्चन ही सीगा पिछले क्वेश्चन दे विच आपां पी ए अपॉन बी कैलकुलेट कीती सी इत्थे आपां पी बी अपॉन ए कैलकुलेट कीती है सो फर्क की पिया उपर तो दोवां दी ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई सो इत्थे जे ए सी तो नीचे ए की प्रोबेबिलिटी लै ली जे नीचे बी होएगा तो वह आपां बी की प्रोबेबिलिटी लै लांगे नीचे ओवर दे विच सो नैक्सट क्वेश्चन है हाँ जी ये डेसीमल वाला क्वेश्चन आ गया अपने को पी ए अपॉन बी ठीक है जी ए इनकी डेफिनेशन ला दिए पी ए इंटरसैक्शन बी ओवर पी बी सो पी ए इंटरसैक्शन बी कितनी है तुहाडे कोले 0.32 पी बी कितनी है 0.5 सो इन्हों आप सिंपलीफाई कर लीए 32/100 आ जाएगा इंटू ए 5/10 होना सीगा ये 10 उपर लै जाइए ठीक है जी आ 0 नाल 0 कैंसल ए 32/50 आ गया नीचे आप 100 बना लिए 2 नाल मल्टीप्लाई करके ये 64/100 आ गया 100 क्यों नीचे बनाया क्योंकि आप डेसीमल दे विच आंसर है सो इनू डेसीमल दे विच आप कन्वर्ट कर लांगे 0.64 है तुहाडा आंसर आ गया सो ये फस्ट दा ए पार्ट आ गया तुहाडे कोल ठीक है जी सो ये सेम क्वेश्चन सी अपने कोल जिहड़ी विच आर बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं हाँ बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बड़े बच्चे इहदे विच थोड़ा जिहा कन्फ्यूज हो जाते हैं सो ध्यान नाल देखना क्वेश्चन है किवें सॉल्व करना सो आपां नूं एक तां 2PA 2PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 5/13 कहने का मतलब 2PA है जिहड़ा वो 5/13 दे इक्वल है इत्थों आपां प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A है जिहड़ी वो कैलकुलेट करांगे 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 26 ते PB दी अपने कोले प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज 5/13 ते एक आपां नूं की गिवन है P A अपॉन B जां कह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट B इज अक्कड़ सो ए 2/5 है सो आप इतने पी ए यूनीयन बी फाइंड करना ठीक है ये चीज़ आप ध्यान च रखना कि चीज़ एवैल्यूएट करनी है आप सो पहले तो डेफिनेशन ला दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी बी आ गया जी इक्वल्स टू 2/5 पी ए इंटरसैक्शन बी इत्थे पी बी गिवन है आपां नूं ठीक है पहले तो वो कैलकुलेट कर लीए पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13 इज इक्वल्स टू 2/5 सो इथों अपने को पी ए इंटरसैक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी सो ये 5/13 आ गया 5 नाल 5 कैंसल सो कितना आंसर आ गया 2/13 बच्चे जे तो आपां इत्थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी फाइंड करने को कहा जाता फिर तो ये आंसर आ गया सीगा ठीक है बट आपां फाइंड करने की क्या है पी ए यूनीयन बी सो इतने एडिशन ना ला दिए विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी सो अपन पी ए भी पता है पी बी भी पता है पी ए इंटरसैक्शन बी आप इतने कैलकुलेट कर ली सी सो पी ए की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ गई 5/26 प्लस
पी बी की वैल्यू 5/13 माइनस 2/13, ठीक है, पी ए इंटरसैक्शन बी दी। सो डिनोमीनेटर सेम कर लिए, फ्रैक्शंस आ गई इन्हां दी एडिशन करने लई, जां तां एलसीएम लैना हुंदा जां डिनोमीनेटर सेम कर लिए। सो मैं इत्थे डिनोमीनेटर सेम करन लगा, इत्थे भी 26 बना लीए। सो ये 5/26 प्लस 10/26 माइनस 4/26 तुहाडे कोले आ गया। सो ये हुण डिनोमीनेटर सेम हो गए। सो न्यूमरेटर सीधे ऐड सबट्रैक्ट कर दिए, 10 + 5 15, 15 दे विचों 4 गए 11, 11/26 इज योर आंसर। सो ये तुहाडी पी ए यूनीयन बी आ गई। सो ये क्वेश्चन नूं आपां इत्थे इस तरह सॉल्व करना सी। इत्थे 2 की जगह दे बच्चे 3 भी आ सकदा, इंज भी क्वेश्चन हो सकदा है। इत्थे कोई तुहाडे कोले 5 इत्थे भी इस तरह 5 भी पा सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 7/9 से, ठीक है। सो इत्थे प्रोबेबिलिटी किवें फिर कैलकुलेट करांगे, इत्थे फर्क आ जाएगा बच्चे। इत्थे पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 7/27 ते पी बी की 7/45, ठीक है। सो इत्थे 5 है जिहड़ा, जो पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैलकुलेट करांगे उधर जाके डिवाइड होएगा, ठीक है। सो सिमिलरली इत्थे पी ए की जो कैलकुलेट करांगे उधर जाके डिवाइड होएगा। कहने वाला 3 पी ए इज इक्वल्स टू 7/9, 5 पी बी इज इक्वल्स टू 7/9। सो जिवें इत्थे आपां डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कड्ढी है, उस केस दे विच आपां बी दी भी फिर डिवाइड करके कैलकुलेट करांगे। सो इस क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल करना है। अगे नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की है बच्चे, पी ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0। सो वी आर टू कैलकुलेट पी ए अपॉन बी। सो ला दी डेफिनेशन बई की सीगी, पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है जी, पी ए इंटरसैक्शन बी। हाँ जी, हुण इधर देखो पी बी 0 आ गई बच्चे। सो कंडीशन डेफिनेशन की सीगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी शुड बी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होनी चाहिए है। सो ये डिफाइन नहीं होया। सो जो ओवर च 0 आ जाए तो की आंसर ला देना, नॉट डिफाइन आ जाना अपने कोले। सो इत्थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे नॉन जीरो होंदी तां ही इनका कोई आंसर होना सीगा, ठीक है, इस करके सो इनका नॉट डिफाइन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। ये भी डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के उपर ही बेस्ड है। सो आपां नूं की गिवन है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए, ठीक है जी। सो इनकी डेफिनेशन की है, पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी बी, इधर बच्चे पी बी इंटरसैक्शन ए अपॉन पी ए। सो आपां नूं पता है ए इंटरसैक्शन बी ते बी इंटरसैक्शन ए दोवें इक्वल ही हुंदे आ, ठीक है। सो इनू जे आपां इंज भी लिख लीए तो कोई फर्क नहीं पैना, ठीक है जी। सो कहने का मतलब पी ए इंटरसैक्शन बी बाय पी बी कहते इक्वल आ गई पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी ए दे। सो ए दा टर्म्स कैंसल आउट हो जानी है, कह लो 1 अपॉन पी बी कहते इक्वल आ गया 1 अपॉन पी ए दे। और इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कहते इक्वल आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पी ए नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1 पी ए ही आ गया। सो 1 नूं पी बी नाल मल्टीप्लाई किया पी बी आ गया। सो आवर आंसर इज डी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नूं आपां इस तरह सॉल्व करना सीगा। सो वैरी ईजी क्वेश्चन बच्चे, ये सिर्फ डेफिनेशन के बेस से जिन्ने भी क्वेश्चन किए हैं। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है जी, वो तुहानूं चंगी तरह आउंदी होनी चाहिए है, तां जो तुसीं जिहड़े कि ईजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नैक्सट है बच्चे अपने को मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो आपां हुणे बच्चे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करके आए हैं। पी ई अपॉन एफ है जिहड़ा, वो किहदे इक्वल हुंदा है, पी ई इंटरसैक्शन एफ बाय पी एफ। सो इत्थों आपां की करते हैं, पी ई इंटरसैक्शन एफ जां कह लो जिन्हों आपां पी ई एफ जां पी ई एंड एफ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इनू ए पी इंटरसैक्शन एफ नूं इस तरह भी आपां लिखिया जा सकदा। सो दैट इज प्रोडक्ट हो गई इन्हां दी पी ई ते एफ इवेंट दी। सो इधर आपां की कीता, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कराता, पी एफ नूं पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ आ गया बच्चे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेट इट बी 1। सिमिलरली पी एफ अपॉन ई ये कहते इक्वल होएगा पी ई इंटरसैक्शन एफ अपॉन पी ई दे इक्वल, इनू इहदे नाल फिर मल्टीप्लाई करवाइए, इथों पी ई इंटरसैक्शन एफ की वैल्यू की आ गई पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। सो दीज above equation 1 and 2 are
known as multiplication rule of probability। ठीक है जी। सो ये अपने को 1 ते 2 बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिहड़े इन्हां नूं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कह दिंदे आ। सो जे 1 नंबर दे विच क्वेश्चन आया तो तुसीं इहदी डेफिनेशन याद रखनी है। नैक्सट बच्चों आ गए इंडिपेंडेंट ईवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट ईवेंट्स की डेफिनेशन की है, लेट ई एंड एफ बी टू ईवेंट्स एसोसीएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरीमेंट। ठीक है जी। सो किसी सेम रैंडम एक्सपेरीमेंट के नाल अपने को 2 ईवेंट एसोसीएट करते पे आ। ई ते एफ नूं आपां इंडिपेंडेंट कहांगे, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब जिहड़ी एफ की प्रोबेबिलिटी है वो ई नूं नहीं अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ई दी एफ नूं नहीं इफेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ईवेंट्स। सो इनकी की डेफिनेशन की है, आपां किवें पता लगता है कोई 2 ईवेंट है जिहड़े वो इंडिपेंडेंट है। सो जे ई ते एफ की इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी उन्होंने कल्ले कल्ले ईवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है, पी ई इंटू पी एफ हो जाती है, तो आप कहने वो इंडिपेंडेंट ईवेंट्स है। सो आप इस इंडिपेंडेंट ईवेंट्स को एक एग्जाम्पल के नाल समझते हैं। ठीक है, आप की लिया एक 52 पत्तियां का जिहड़े आपां एक डैक ऑफ कार्ड्स लिया, 52 कार्ड्स ले, ताश के पत्ते ले। ठीक है, ई ईवेंट इन्हां विचों मान लिया मैं लेट्स से एस का ले लिया आप। ठीक है, एस ले ली। एफ ईवेंट ले लिया आप से स्पेड ले ली। ठीक है, स्पेड ले ली आप। सो आपू पता है ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है जिहड़ी, हाँ जी, यक्के बच्चे किन्ने हुंदे आ, एस 4 हुंदे आ, आपां पता। स्पेड दे कार्ड किन्ने हुंदे आ, 13 हुंदे आ स्पेड दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ईवेंट इत्थे किन्नी आई, 4/52। ठीक है जी, क्लीयर है। सो एक पत्ता आप ड्रा किया। ठीक है, इन्हां 52 कार्ड्स दे विचों। सो एफ की प्रोबेबिलिटी की आई 13/52। ठीक है जी। सो ए अपने को स्पेड के 13 पत्ते होंगे आ, तो अपने को एस है जोड़ा, जां कह लो यक्का वै। ठीक है, यक्का वै जोड़ा, हुक्म या चिड़ी, कोई बुक्स इनू हुक्म कह देंगे, कोई चिड़ी कह देंगे स्पेड नूं। सो ये अपने को जोड़ा स्पेड का एस है वो एक ही होएगा, कह लो ई इंटरसैक्शन एफ है जिहड़ी उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये अपने को स्पेड सूट होंगे एक। ठीक है, हरेक सूट का अपने को एस एक ही होएगा। सो ये 1/52 ये पी ई इंटरसैक्शन एफ आ गई, कॉमन इन्हां दे विच इक्को ही आ। ठीक है, हुण आपां पी ई अपॉन एफ कैलकुलेट करन जा रहे हैं। हुण कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये अपने को किहदे बराबर होएगी, पी ई इंटरसैक्शन एफ अपॉन पी एफ दे। ठीक है, सो पी ई इंटरसैक्शन एफ कितना 1/52, पी एफ कितना तुहाडे कोले 13/52। सो ये कैंसल हो गया, एक की आ गया 1/13 आ गया। सो इत्थे पी ई की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होंदी पई है, 13 चौका 52, 13 4 52, वो भी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट दे इक्वल ही आ गई। कहने का मतलब की है इत्थे, ये ध्यान नाल देखनी है डेफिनेशन, जदों अपने कोले एफ की प्रोबेबिलिटी ने ई की प्रोबेबिलिटी नूं इफेक्ट नहीं किया, मतलब पी ई अपॉन आपां एफ कैलकुलेट किया, वो पी ई ही आ गया। ठीक है, सिमिलरली इत्थे हुण जदों तुसीं पी एफ अपॉन ई कैलकुलेट करोगे वो पी एफ के इक्वल आ जाऊगा। ठीक है, इनू मैं 1 नंबर से 2 नंबर का नाम दे देना। ठीक है, सो पी ई अपॉन एफ किंदे इक्वल आ गया, पी ई दी। इत्थे तुसीं जदों पी एफ अपॉन ई भी कैलकुलेट करोगे वो पी एफ के इक्वल होंदा पिया। कहण दा मतलब जदों आपां एफ की प्रोबेबिलिटी कढदे पे ई की प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी नूं नहीं इफेक्ट करदी पई, जदों आपां ई अपॉन एफ कढदे पे उदों एफ की प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी नूं नहीं इफेक्ट करदी पई। सो जदों भी एवें दे केस होणगे आपां की कहांगे, ये दोवें इवेंट्स है जिहड़े वो इंडिपेंडेंट है। सो इत्थे आपां की सिੱਖਿਆ, जदों पी ई अपॉन एफ है जिहड़ा वो पी ई दे इक्वल आया। ठीक है, तो इत्थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बनी, पी ई इंटरसैक्शन एफ बाय पी एफ एक इक्वल हो गया बच्चे, वो पी ई दे इक्वल ही हो गया। सो पी ई इंटरसैक्शन एफ कहते इक्वल आ गया पी ई इंटू पी एफ दे। सो ये इंडिपेंडेंट ईवेंट की अपने को डेफिनेशन बनी भी जे 2 ईवेंट इंडिपेंडेंट सी, जिवें पिछे ई ते एफ इंडिपेंडेंट सी, वो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी
ਤੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PE ਇੰਟੂ PF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਕਾਮਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, +1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਮੇ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਆਊਟਕਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਟ ਸੇ ਕੋਈ A ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, कोई B इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, सो इस तरह के इवेंट कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो जेडे ये एवें दे इंडिपेंडेंट इवेंट होणगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होणगे, याद रखना। ठीक है, ते एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, अपने को से कोई E ते F है इवेंट, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀਜ਼ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, two events A and B are independent events, then P A intersection B ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ P A into P B ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ A is 3/5 of B is 1/5। A ਤੇ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ A ਤੇ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ P A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P A into P B ਦੇ। ਸੋ P A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3/5 ਤੇ P B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/5। ਸੋ 3 into 1 3, 5 ਦਾ 25। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3/25 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। हाँ जी बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन अपने को जेडे कि डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट के उपर ही बेस्ड है। सो अपने को टू इवेंट्स A एंड B इंडिपेंडेंट गिवन है। ठीक है, इफ हाँ जी बच्चे नैक्सट क्वेश्चन है, टू इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बच्चे आप हुणे पढ़ के आए हैं, जे कोई दो इवेंट्स जिन्हों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होवे, ठीक है, जे वो इंडिपेंडेंट होणगे तो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होणगे। ठीक है, सो ए ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, सो अगे बी ऑप्शन ते चलते हैं। हुण जे एक चीज़ होर है बच्चों, जे ए ते बी इंडिपेंडेंट होण तां इन्हां दे कॉम्पलीमेंट है जिहड़े वो भी इंडिपेंडेंट हुंदे आ। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। सो हुण बी ऑप्शन पी ए, सो बच्चे ए हुणे मैं तुहानूं दस के आया पी ए इंटू बी दा मतलब की है पी ए एंड बी नूं आपां इंज भी लिख सकते हैं। सो बी ऑप्शन मैं लैके चल रहा। सो ये याद रखना पी ए डैश बी डैश में आप पी ए इंटरसैक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। इतने बच्चों डिमॉर्गन ला ला दिए +1 के आप ए यूनीयन बी का कॉम्पलीमेंट जां कह लो नॉट लिख सकते हैं। ए 1 पहला 1 माइनस पी बी नाल मल्टीप्लाई, फिर माइनस पी ए नूं 1 माइनस पी बी नाल मल्टीप्लाई। सो ये इनू आप 1 माइनस पी ए यूनीयन बी लिख सकते हैं। ये 1 माइनस पी बी माइनस ए अंदर प्रोडक्ट करा दिए, ये पी ए माइनस माइनस प्लस पी ए इंटू पी बी आ गया। सो इत्थे आपां फॉर्मूला ला दिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है जी, सो 1 आ बच्चे 1 इहदे नाल कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस पी
B माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। सो ए माइनस अंदर ले जाइए, माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू माइनस पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। सो ए पी ए नाल पी ए कैंसल, पी बी नाल पी बी कैंसल, तुहाडे कोले की बच गया पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। इहदा मतलब की होया ए ते बी की है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सो यही आपां इत्थे देखना सीगा भी ए ते बी इंडिपेंडेंट किहड़े केस च बन रहे हैं। सो ये बी ऑप्शन अपने कोले आंसर आ गया। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन तुहाडे जिहड़े टैस्ट दा शेड्यूल आया सी उहदे विच भी शायद ये क्वेश्चन आया सीगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम। बच्चे इवन प्राइम इक्को ही नंबर हुंदा 2, ठीक है, जिहड़ा इवन भी होवे ते प्राइम भी होवे वो 2 ही है। ठीक है। सो कहते भी हरेक डाई ते इवन प्राइम आउण दी प्रोबेबिलिटी की होएगी। ठीक है, जे आपां एक पेयर ऑफ डाइस है जिहड़ा रोल करिए, सो वो केस बच्चे यही 2 ही बनना है, होर कोई वो केस बनना ही नहीं। सो एक ही केस बनेगा ये। सो जे इवन 4 इवन हैगा वा पर वो प्राइम नहीं हैगा, सो ये भी नहीं लै सकते। 6 है वो इवन हैगा बट प्राइम नहीं गा, सो एक ही केस बनेगा। सो इनका आंसर ही आ जाना 1/36। सो डी आंसर आ गया बच्चे इनका। ठीक है, बड़ा ईजी क्वेश्चन सीगा ये। सो इहदे नाल दे क्वेश्चन तुहाडे कोले होर भी डाइस दे पूछे जा सकते हैं। सम 7 होवे, जोड़ 7 होने की प्रोबेबिलिटी दसो, जोड़ 9 होने की प्रोबेबिलिटी दसो। ठीक है, डिफरेंस दे हो सकते हैं, मल्टीपल दे क्वेश्चन हो सकते हैं इहदे विच जिहड़े तुहानूं पूछे जा सकते हैं। सो ये बड़े ईजी क्वेश्चन है। नैक्सट, given that event A and B are such that PA किन्ना अपने कोले probability of A event किन्नी है 1/2, probability of A union B A किन्नी है 3/5। आपां नूं probability of B है जिहड़ी ओह P given है, हुण आपां find P करनी है। सो फर्स्ट है जे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होण। ठीक है, जे A ते B की है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होण। जे बच्चे A ते B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इन्हां दी इंटरसैक्शन एम्प्टी होनी है। ठीक है, जे इंटरसैक्शन एम्प्टी है, इन्हां विच कॉमन कुछ नहीं गा, तो इन्हां दी प्रोबेबिलिटी अपने कोले 0 आ जानी है। सो जदों आपां रिजल्ट लावांगे एडिशन नाल पी ए यूनीअन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। सो इहदे विच इह वैल्यूज फिल करिए। पी ए यूनीअन बी किन्नी है 3/5, पी ए किन्नी है तुहाडे कोले 1/2, पी बी किन्नी है तुहाडे कोले पी ए इंटरसैक्शन बी 0। सो ए उधर लै जाइए आपां 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू पी। इनू सिंपलीफाई कर लीए, एलसीएम 10, 6 माइनस 5। ठीक है जी, 3 2 6 5 1 5। इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मैं कर लेना ना, जां एलसीएम लैके तुसीं कर सकते हो। ये कितना आंसर आ गया, पी की वैल्यू 1/10 आ गई। सो ये सीगा बच्चे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला केस। सैकेंड पार्ट, सैकेंड पार्ट दे विच की है तुहाडे कोले, सैकेंड पार्ट दे विच ईवेंट्स जिहड़े इंडिपेंडेंट दिते हैं। हुण आपां नूं पता जे ईवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसैक्शन बी किंदे इक्वल होएगी पी ए इंटू पी बी दे। ठीक है जी। सो पी ए की वैल्यू इत्थे किन्नी आ गई तुहाडे कोले 1/2, पी बी की किन्नी है पी। सो कहने का मतलब पी ए इंटरसैक्शन बी P/2 अपने कोले आ रहा। सो इत्थे फिर रिजल्ट दे विच आपां वैल्यूज फिल करिए। पी ए यूनीअन बी किन्नी है 3/5 इज इक्वल्स टू पी ए किन्नी है 1/2 प्लस पी बी किन्नी है पी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी आप उपर कैलकुलेट की है P/2। सो इनू उधर ले जाइए फिर 3/5 माइनस 1/2। सो पी दे विचों P/2 सबट्रैक्ट करांगे की रह जाएगा 1 P/2 मतलब 1 दे विचों कह लो 1/2 सबट्रैक्ट करांगे 1/2 P कॉमन आपां इत्थों कढ के नाल मल्टीप्लाई करवाता। इत्थे 3/5 माइनस 1/2 दा रिजल्ट आपां इत्थे कैलकुलेट कीता ही सी, कितना आया सीगा 1/10 आया सीगा। उत्थों ही चक लीए आपां 2 इधर मल्टीप्लाई करा दिए 1 नाल 2/10 इज इक्वल्स टू P। सो ए 2 दे टेबल ते कटिंग हो गई 2 5 दा 10। सो P की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। सो इस केस दे विच P की वैल्यू 1/5 आई है। सो फर्स्ट केस दे विच जदों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीगे उदों कितनी आई सी 1/10। सो अगे नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी। हाँ, नैक्सट क्वेश्चन है A and B are two events such that probability of event A is 1/4, probability of event B is 1/2 and P A intersection B is 1/8। हुण आपां नूं बच्चों की पूछ लिया P
नॉट ए एंड का मतलब की होंगे बच्चों इंटरसैक्शन पी बी नॉट, ठीक है जी। सो ये आप डिमॉर्गन्स ला जिवें पिछे करके आए क्वेश्चन, इत्थे डिमॉर्गन्स ला ला दिए पी ए यूनियन बी का कॉम्पलीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। सो इनू लैट इट बी 1 कर लीए। हुण पी ए यूनियन बी कैलकुलेट करिए, ये कहते इक्वल होएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी दे। हाँ जी नैक्सट स्टैप पी ए की वैल्यू कितनी तुहाडे कोले 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 1/2, पी ए इंटरसैक्शन बी की कितनी है 1/8, ठीक है जी। सो डिनोमीनेटर सेम कर लीए, ठीक है जी। इनू भी 2 नाल मल्टीप्लाई कर लीए, इनू 4 नाल 8 बना ली डिनोमीनेटर सारिਆਂ ਦਾ, ये 2/8 प्लस 4/8 माइनस 1/8, 4 ते 2 6 6 माइनस 1 5/8 आ गया, पुट इन 1 कर दिए। सो 1 माइनस 5/8, सो 8 माइनस 5 करना आ जाएगा 3/8 इज योर आंसर। सो पी नॉट ए एंड नॉट बी आप इस तरह कैलकुलेट करना सीगा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। गिवन टू ईवेंट्स इंडिपेंडेंट, सो ये अपन ईवेंट्स इंडिपेंडेंट दिते हुए इंडिपेंडेंट का मतलब की सीगा बच्चों पी ए इंटरसैक्शन बी किंदे इक्वल होएगी पी ए इंटू पी बी दे, ठीक है। सो अपन पी ए ते पी बी गिवन ही है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं सब तो पहला पी ए एंड बी। सो पी ए एंड बी का मतलब एंड का मतलब बच्चों की सीगा इंटरसैक्शन, ठीक है जी। ए इंडिपेंडेंट ईवेंट है, ए पी ए इंटू पी बी लिख लिया इन्हों। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 तो इनकी 0.6, सो इनू 3/10 लिख लीए, इनू 6/10 लिख लीए, ये 18/100 आ गया। सो ये 2 जीरोज आई, सो राइट साइड तो 2 प्लेसिस छड्ड के डेसीमल पुट कर दिए। सो 0.18 है जोड़ा वो अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। सो सैकेंड क्वेश्चन करते हैं पी ए एंड नॉट बी। हाँ जी जी ये आप +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੀ ਏ ਐਂਡ ਨੋਟ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਓਨਲੀ ਏ, ਕੀ मतलब ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਓਨਲੀ ਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਏ ਹੈ ਇਹ ਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ नहीं होना चाहिए ए बट नॉट बी। सो ये रीजन बनया अपने, ठीक है। सो कहने का मतलब आप ए की प्रोबेबिलिटी के विचों जिहड़ा ए रीजन है दैट इज ए इंटरसैक्शन बी, ए इनकी प्रोबेबिलिटी आप सबट्रैक्ट कर देंगे। सो इनका रिजल्ट की बनया पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। जे से अपने को आ जाता पी बी एंड नॉट ए आ जाता, फिर आप की करना सीगा बी दे विचों ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फिर सबट्रैक्ट कर देनी, फिर आप अपना जिहड़ा मतलब है फिर वो इहदे इस रीजन नाल होना सीगा, ठीक है जी। सो हुण आपां नूं पी ए एंड नॉट बी पूछा गया। सो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है तुहाडे कोले 0.3, पी ए इंटरसैक्शन बी की आप इत्थे कैलकुलेट करके आए सीगे 0.18, 3 तो बाद आप 0 लगा लीए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पैना। सो ए 0.12 है जोड़ा तुहाडा ये आंसर आ गया, ठीक है जी। सो नैक्सट इनका थर्ड पार्ट करन जा रहे हैं, ठीक है जी। सो ये थर्ड पार्ट देख लो किवें करना बच्चों। हाँ जी थर्ड पार्ट दे विच आपां नूं की पूछा गया जी पी ए और बी, ठीक है जी। थर्ड पार्ट की है पी ए और बी, और दा मतलब सी +1 विच भी पढ़िया है यूनियन मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। पी ए की वैल्यू कितनी सी तुहाडे कोल 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू 0.6, पी ए इंटरसैक्शन बी कितनी आई सी इन्हां दोवां दी आपां प्रोडक्ट करके कैलकुलेट कीती सी 0.18 आई सी, ठीक है। ये तुहाडे कोल 0.9 आ गए माइनस 0.18। सो डेसीमल तो बाद आप डिजिट सेम करने होंगे जो डेसीमल्स की एडिशन सबट्रैक्शन करनी होंगी है। सो 10 चों 8 गए 2, 8 चों 1 गए 7, सो 0.72 है जोड़ा वो आंसर आ गया तुहाडा, ठीक है। सो नाइदर वाला पार्ट बच्चे ये पहला भी कर रहे हैं ना ही ए ते ना ही बी, ठीक है। सो इनू आप इंज लिखांगे, ठीक है। सो इहदे ते उही डिमॉर्गन्स ला ला दिए।
सो वो पी ए यूनियन बी दे कॉम्पलीमेंट के इक्वल होंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 के सबट्रैक्ट कर दिए। ठीक है जी। सो पी ए यूनियन बी उपर आप कैलकुलेट करके आए हैं विच इज 0.72। सो 1 के जो सबट्रैक्ट करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 0.28। सो ये तो क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करना सीगा। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स आपां पी ए प्लस पी बी माइनस पी एंड का मतलब इंटरसैक्शन विच इज इक्वल्स टू पी ए। सो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। सो ए अपने को कट्टियां जाएगियां। ठीक है। सो पी ए इंटरसैक्शन बी आ गया। सो इधर डिवाइड करवा दिए ए पी बी आ गया। सो ये बच्चे बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये किंदी वैल्यू बनी डिनोमिनेटर च चेक करो उपर तो ए दे बी दोवां दी नीचे चेक करना होंदा कि बी आया। सो डिनोमिनेटर उपर ए आएगा तो नीचे की आएगा बी आएगा। सो पी ए अपॉन बी ये कहते इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। कितना आंसर आ गया इनका बी आंसर आ गया। ठीक है जी। सो अगे नैक्सट क्वेश्चन से चल रहे हैं। हाँ जी बच्चे नैक्सट क्वेश्चन की है अपने को probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ B ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। if both try to solve their problem independently। so मतलब वो इंडिपेंडेंटली ये प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व कर लिया। कहने का मतलब here A and B are independent event। ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्वड। सो फर्स्ट पार्ट बच्चे जो अपने को हैगा प्रोबेबिलिटी इज सॉल्वड द प्रॉब्लम इज सॉल्वड द। सो ये आपां किवें सॉल्व करांगे प्रॉब्लम इज सॉल्वड। बच्चे प्रॉब्लम है जी जां तां ए ने सॉल्व की होनी है जां बी ने सॉल्व की होनी है किसी एक ने की होनी है। ठीक है। सो इनका मतलब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करनी। ठीक है। सो ए और बी का मतलब की बच्चे बनया पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है। पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 पी बी की कितनी है 1/3। ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट गिवन है इन्होंने पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3। सो ए तुहाडे कोले एलसीएम 6 आ गया इत्थे। ठीक है जी। ए 3 + 2 इधर -1/6 आ गया। ए 5/6 माइनस 1/6 आ गया। सो सिंपलीफाई करके कितना आ गया 4/6 आ गया। 2 के टेबल से कटिंग हो गई। सो कितना आंसर आ गया 2/3। सो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3। नैक्सट अपने को एग्जैक्टली वन ऑफ दैम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। exactly one of them will solve। सो इन्हां विचों एक ही सॉल्व करूगा जां तां ए करूगा बी ने नहीं करना। ठीक है। सो जां अपने कोले बी करूगा ए ने नहीं करना। ठीक है। सो एक चीज़ याद रखनी है जे ए ते बी इंडिपेंडेंट है तां ए ते बी का कॉम्पलीमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट हुंदा। ठीक है। बी कोमा ए का कॉम्पलीमेंट है ये भी है कि है इंडिपेंडेंट ही होंगे है। सो इन्हों आप इंडिपेंडेंट है इन्हों अलग अलग करके लिख लीए। इधर पी बी इंटू पी ए का कॉम्पलीमेंट आ गया पी ए की वैल्यू। ठीक है। पी ए की वैल्यू 1/2 सी पी बी की 1/3 सी। ठीक है जी। पी बी की 1/3 सी वैल्यू। सो पी बी नॉट कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 1 दे विच इहनूं सबट्रैक्ट कर लीए 2/3 आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 सी पी ए की वैल्यू 1/2 है पी ए नॉट की कितनी आ जाएगी 1 दे विचों 1/2 सबट्रैक्ट किया 1/2 आ जाएगी। ए तुहाडे कोले 2/6 आ गया ए 1/6 आ गया विच इज इक्वल्स टू 3/6। सो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। सो इस क्वेश्चन को आपां इस तरह सॉल्व करना सीगा। उम्मीद है तुहानूं ये अज का लैक्चर वधिया लग्या होएगा। सो तुसीं सारिਆਂ ने जिहड़ी तुहाडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उनकी जिहड़ी फस्ट 2 एक्सरसाइज के उपर बेस्ड ही ये सम सीगे। सो तुसीं मैक्सीमम जिहड़ी ट्राई करनी है MCQ सॉल्व दी करन दी करनी है क्योंकि इस बार जिहड़ा टर्म 1 का एग्जाम है तुहानूं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ MCQ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।